Hello students, welcome to my channel. Today we are starting with civics, class 6, chapter 8, urban livelihood. So walking on the street. This is the city where my cousin lives. I have been here only a few times. It is very big. Once when I came here, my cousin took me around. We left the house early in the morning. As we turned the corner onto the main street, we saw that it was already buzzing with activity. The vegetable vendor was busy arranging tomatoes, carrots, and cucumbers in baskets at her stall so that people could see what she had to what she had to sell. तो ये बता रहा है कि मैं अपने कजिन के यहाँ गया और वो एक बड़ी सी सिटी में रहता है। तो वो उनकी डेली लाइफ बता रहा है कि जब वो सुबह सुबह गए तो भी वहां पे बहुत बज हो रही थी, मीन्स बहुत रश हो रहा था कि वेजिटेबल वेंडर जो हैं वो अपनी सारी जो वेजिटेबल्स है वो अरेंज करनी थी ताकि जो कस्टमर्स हैं वो देख पाए। Next to her stall was the lovely colorful one that sells all kinds of flowers. और उसके नेक्स्ट में उस स्टॉल के नेक्स्ट में एक बहुत अच्छे फ्लावर्स की शॉप थी। We bought a red rose and a yellow rose. On the pavement opposite, we saw a person selling newspaper with a small crowd of people around him. और उनके सामने मैंने क्या देखा कि एक एक न्यूज़पेपर बेच रहा था एक आदमी और उसके आसपास काफी सारे लोग खड़े थे। Everyone wanted to read the news. Buses whizzed past and there was auto rickshaws filled with school children. बहुत सारी बसेस हमारे हमारे पास से जा रही थी और बहुत सारे ऑटो रिक्शाज में चिल्ड्रन स्कूल जा रहे थे, स्टूडेंट्स स्कूल जा रहे थे। Nearby, under a tree, a cobbler sat taking his tools and materials out of a small tin box. Next to him, the roadside barber had begun his work, who already had a customer who wanted an early morning shave. तो ये वो बता रहे हैं कि किस किस को देखा उसने और वो क्या क्या कर रहे थे। A little way down the road, a woman was pushing along a cart with all kinds of plastic bottles, boxes, hairpins, clips, etc. in it, while another person with the cycle trolley was carrying vegetables to sell to people in their houses. उसने देखा कि एक वुमेन कार्ट पुश करी थी, कार्ट को भी जिसमें काफी सारा प्लास्टिक हेयर पिन्स क्लिप्स रखी थी और एक दूसरा पर्सन क्या वेजिटेबल्स बेच रहा था। We came to a place where rickshaws were standing in a row waiting for customers. We decided to take one to the market, which was about 2 kilometers down the road. तो वो बता रहे कि क्या क्या उसने देखा और उन्होंने एक रिक्शा लिया क्योंकि उनको दूर जाना था 2 kilometers. Now, but बच्चों मांझी, a cycle rickshaw. I came from the village in Bihar where I worked as a mason. My wife and 3 children live in the village. We don't own land. In the village, I did not get masonry work regularly. The income that I earned was not enough for our family. तो एक रिक्शा पुलर अपनी स्टोरी बता रहा है कि मैं बिहार से हूँ और मैं वहां पे मिस्त्री का काम करता था। मेरे मिस्त्री के काम इतना पैसा नहीं मिलता था मुझे उस काम से, तो मैं यहाँ पे आ गया। After I reached this city, I bought an old cycle rickshaw and paid for it in installments. This was many years ago. तो जब मैं यहाँ पे आया मैंने एक रिक्शा बाय करा, ओल्ड रिक्शा। मैंने मतलब सेकेंड हैंड रिक्शा मैंने खरीदा और उसको मैंने इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट की उस रिक्शे की। और ये काफी साल पुरानी बात। I came to the bus stop every morning and take the customers wherever they want to go. I work till 8:30 in the evening. और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ सुबह सुबह और मैं कस्टमर्स को इधर उधर लेके जाता हूँ और मैं 8:30 बजे तक रात शाम तक काम करता हूँ। I take rides up to 6 kilometers in the surrounding area. Each customer give me rupees 10 to 30 per trip depending on the distance. When I am ill, I can't do this work. So on those days, I don't earn anything. तो जब कभी वो बीमार हो उसको कितना अर्न करता है, 10 to 30 रुपीज पर कस्टमर उसको पे करते हैं और वो 6 किलोमीटर तक राइड कर लेता है। और जब वो इल होता है तो वो नहीं कर पाता काम, तो वो उस दिन वो कोई कुछ अर्न नहीं करता। I stay with my friends in a rented room. They work in the nearby factory. I earn rupees 200 to 300 every day, out of which I spend rupees 100 to 150 on food and rent. The rest I save for my family
I visit my family 2 to 3 times in a year to see my family. Though my family survives on the money I send, my wife also earns from agriculture work that she gets once in a while. तो बता रहा है कि वो थोड़ा सेव करता है, थोड़ा वो अपने घर में घर के लिए बचा, थोड़ा वो खर्च कर देता है, थोड़ा वो सेव करता है ताकि वो अपने घर के लिए भेज पाए। एग्रीकल्चर वर्क भी मेरी उसकी वाइफ करती है जब भी उसको मिल जाता है। तो like Bachchu Manji, a large number of people in the city work on the streets. In a survey of Ahmedabad city, it was found that 12% of all the workers in the city were people working on the street. ऐसा देखा गया एक सर्वे में कि अहमदाबाद में 12% पीपल ऐसे हैं, वर्कर्स ऐसे हैं जो सिटी में काम करते हैं, मीन्स उनका कोई एक वर्क प्लेस नहीं है, वो ऐसे सिटी में काम करते हैं street में। They sometimes sell things or repair them or provide a service. They work on their own. They are not employed by anyone and therefore have to organize their own work. कोई वो किसी के अंडर एम्प्लॉयड नहीं है, किसी के अंडर वो काम नहीं करते हैं और इसलिए उनको खुद ही अपना वर्क सारा ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। They have to plan how much to purchase as well as where and how to set up their shop. Their shops are usually temporary structures, sometimes just some boards or paper spread over discarded boxes or maybe a canvas sheet hung up on a few poles. This और उनका कोई एक स्पेसिफिक वर्क प्लेस नहीं है, जो उनको उनकी जो वर्क प्लेस होती है वो टेम्पररी होती है, मीन्स रोड हो गई या फिर कुछ उन्होंने न्यूज़पेपर्स को कार्डबोर्ड के ऊपर बिछा लिया, वो उनका मतलब काम हो गया, तो उनकी टेम्पररी रहती है इससे। दे मे ऑल्सो यूज देयर ओन कार्ट्स और सिंपली अ प्लास्टिक शीट स्प्रेड ऑन द पेवमेंट। कभी कभी वो अपना कार्ट ही लेके चलते हैं, जैसे वेजिटेबल वेंडर्स जो होते हैं, और कभी कभी वो अपनी प्लास्टिक शीट ऐसे ही रोड पे बिछा लेते हैं। दे कैन बी आस्क्ड टू डिसमेंटल देयर शॉप्स एट एनी टाइम बाय द पुलिस, और पुलिस उनको कभी भी कह देती है कि यहाँ से मतलब उठ जाओ, यहाँ पे नहीं कर सकते। दे हैव नो सिक्योरिटी, देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ द सिटी वेयर दीज हॉकर्स आर नॉट अलाउड टू एंटर, और बहुत सारी ऐसी पार्ट्स होते हैं जहाँ पे ये सिटी, जहाँ पे ये एंटर नहीं कर सकते, सिटी में एंटर नहीं कर सकते, जहाँ पे ये कुछ प्लेसेस में। Vendors sell things that are often prepared at home by their families who purchase, clean, sort and make them ready to sell. Vendors आमतौर से क्या सेल करते हैं, जो वो घर में प्रिपेयर करते हैं अपना, दोस्त लाइक वो जैसे स्नैक्स उन्होंने घर पे बनाए और वो फिर बेच रहे हैं। There are almost 1 crore street vendors in the country working in urban areas. Street vending was till recently looked upon only as an obstruction to traffic and to people walking. However, with the effort of many organizations, it is now recognized as a general benefit and as the right of people to earn their livelihood. तो अभी तक क्या अप्रोक्स 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो अर्बन एरियाज में काम करते हैं स्ट्रीट में, और आमतौर से लोग पहले क्या समझते थे उनको कि बस ये जगह ले रहे हैं और ट्रैफिक हो रहा है इनकी वजह से, बट अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के एफर्ट की वजह से एक रिकॉग्नाइज कि उनको भी राइट है कि वो अपना अपने लिए कमा पाए, वो अपना लाइवलीहुड कर पाए। The government is thinking about modifying the law that banned street vendors, और गवर्नमेंट सोच रही है कि जिन्होंने बैन कर दिया था स्ट्रीट वेंडर्स को, उसको दोबारा से मॉडिफाई करा जाए उस लॉ को, so that they have the place to work and that there is also free flow of traffic and people. Hawking zone have been suggested for towns and cities. It has also been suggested that mobile vendors should be allowed to move around freely. Hawkers need to be part of committees that are set up to take these and other decisions relating to them. Now, in the market, when we reached the market, the shops were just beginning to open, but the place was already crowded because of the festival season. अब हमारी क्या उस लड़के की बात आ गई जो अपने कजिन के घर आया था, तब वो बताता है कि हम पहुंच गए इतने में, और अभी क्योंकि फेस्टिव सीजन था, बहुत प्लेस क्राउडेड हो रही थी और शॉप्स खुली रही थी अभी। There were rows and rows of shops selling sweets, toys,
clothes, footwear, utensils, electronic goods, etc. And there was a dentist clinic. तो उसमें तो एक हर चीज की शॉप थी और एक डेंटिस्ट क्लिनिक भी था एंड ऑफ द रोड पे. My cousin had an appointment with the dentist. We went there first so that we would not miss our turn. We have to wait for a while in the room before she was called inside. The dentist examined her and asked her to come back the following day to get a cavity in her tooth filled. My cousin was scared because she thought the process would be painful and was upset that she had allowed her teeth to go bad. अब उसकी cousin के experience बता रहे हैं कि dentist की मतलब वहां पे वो क्या रहा, डेंटिस्ट की उसमें क्या रहा, क्या बताया डेंटिस्ट ने. Now from the dental clinic, she took me to a new garment showroom because I wanted to buy some ready-made clothes. The showroom had 3 floors. Each floor had a different types of clothes. We went to the third floor where the clothes were of for girls were kept. तो हम उस शॉप में थर्ड फ्लोर पे गए क्योंकि वहां पे ही लड़कियों के कपड़े थे. Now Harpreet and Vandana, business person. My father and uncle worked in small shop during festival times, and on Sundays my mother and I helped them in the shop. I started working there only when I completed my college. Harpreet. तो हरप्रीत क्या कह रही है कि मेरे फादर और अंकल एक स्मॉल शॉप में काम करते हैं और फेस्टिव सीजन में मेरी मदर और मैं उनको उनकी हेल्प करने हम चले जाते हैं. We opened this showroom some years ago. I am a dress designer. Our business has changed. These days, people prefer to buy ready-made clothes rather than have them stitched. The trend these days is for ready-made garments. You also need an attractive display for them. अब वंदना कह रही है कि हमने एक शोरूम खोला था कुछ साल पहले एंड शी वॉज अ ड्रेस डिजाइनर. बट आजकल वो कह रही है कि बिजनेस हमारा चेंज हो गया कि आजकल लोग रेडीमेड कपड़े ज्यादा पसंद करते हैं देन कि वो स्टिच स्टिच करवाएं. तो हमारा और उसके लिए बहुत अट्रैक्टिव डिस्प्ले भी चाहिए होता है. For our showroom, we buy things from different places. We buy most of the material from Mumbai, Ahmedabad, Ludhiana, and Tirupur. Some materials also come from Noida and Gurgaon, towns near Delhi. We get some dress items from foreign countries too. तो वंदना बता रही कि हमारा जो रॉ मटेरियल है, कपड़े हैं, वो कहाँ कहाँ से आते हैं. ये मटेरियल है लाइक मुंबई से, अहमदाबाद से, लुधियाना से और कुछ नोएडा और गुड़गांव से भी आता है. There are several things we need to do to run this showroom properly. We advertise in various newspapers, cinema theaters, televisions and radio channels की हमें बहुत मत करना पड़ता है. इसके लिए several things हमें करनी पड़ती है. जैसे हमें इसका एडवर्टाइजमेंट अच्छे से करवाना पड़ता है, तो हमने टेलीविजन पे, रेडियोस पे, न्यूज़पेपर्स में इसका एडवर्टीजमेंट दिया था. Currently this building is rented but soon we plan to buy it. Currently हम जिस बिल्डिंग में यहाँ पे काम कर रहे हैं प्लेस में, वो हमने रेंट पे ले रखी है बट हम उसको थोड़े टाइम में ही खरीद लेंगे, ऐसा वो कहता है, ऐसा वो कहती है. Ever since this market has become the main market for people living in surrounding apartments, our business has grown. We have been able to buy a car and booked a flat in an apartment complex nearby. तो वो यही बता रही है कि बहुत जब से ये मेन मार्केट बना है, वो डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स का एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि जब से ये मेन मार्केट बना है तो हमने बहुत ज्यादा हम ग्रो हुए हैं. Like Harpreet and Vandana, there are many people who own shop in various markets in the city. These shops may be small or large, and they sell different things. Most business person manage their own shops or business. They are not employed by anyone, but they do employ a number of other workers as supervisors and helpers. तो ऐसे ही हरप्रीत और वंदना के जैसे ही बहुत सारे लोगों की शॉप्स होंगी मार्केट में. अब वो खुद ही मैनेज करते होंगे उस शॉप को. वो किसी के अंडर एम्प्लॉय नहीं मतलब किसी के अंडर वो एम्प्लॉय नहीं करते हैं, किसी के अंडर वो काम नहीं करते हैं, बट वो और लोगों को अपने अंडर एम्प्लॉयमेंट देते हैं. These are permanent shops that are given a license to do business by the municipal corporation. के permanent shops हैं जिनको लाइसेंस दिया गया है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा. The municipal corporation also decides on which day the week
of the week, the market has to be remain closed. For example, the shops in the above market are closed on Wednesdays. This market also has a small office and shops that provide services like banks, courier service and others. तो बता रही है कि काफी सारी यहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है जो लाइसेंस देते हैं, और उन्होंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ही डिसाइड कर रखा है कि किस टाइम पे किस दिन ये मार्केट क्लोज रहेगा। और बहुत सारे अदर ऑफिसेज भी हैं, जैसे बैंक्स हो गई, कोरियर सर्विसेज हो गई। Now, in the factory workshop area, I wanted to have Zari work done on one of my dresses which I needed for special occasion. My cousin said that she knew Nirmala, who works in a garment factory. Nirmala's neighbor do Zari work in embroidery, so we caught a bus and headed towards the factory area. तो अब वो उसको क्या एक जरी वर्क की साड़ी भी, वन ऑफ द ड्रेसेस पे एक जरी वर्क करवाना था, तो उसकी कजन ने कहा कि मैं निर्मला को जानती हूँ और निर्मला के नेबर्स एक जरी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो वो वहां पे चले गए। बस बहुत ज्यादा क्राउडेड थी, हर स्टॉप पे और लोग चढ़े रहे थे, मीन्स उतरने की बजाय बहुत लोग चढ़े। People were pushing others to make more space for themselves. My cousin guided me to a corner so that we wouldn't get squashed. और मेरी कजन मुझको एक कॉर्नर में हम चले गए ताकि हम एकदम स्क्वैश ना हो जाए, मीन्स हम एकदम गिचपिच ना हो जाए। I wondered how people travel like this every day. मैंने सोचा कि लोग रोज ट्रेवल करते हैं तो कैसे करते होंगे इतनी, मतलब इतनी हौश पौश उसमें। As the bus entered the factory area, people started getting off. We also got off soon at the crossing. What a relief that was. और जैसे ही फैक्ट्री एरिया में बस पहुंची वैसे ही लोग उतरना शुरू हो गए और हम भी उतर गए उस बस से। There were a large number of people sitting on railings or in groups at the crossing. They seemed to be waiting for someone. Some group had people on scooters standing by and talking with them. My cousin explained दैट दिस प्लेस वाज कॉल्ड लेबर चौक। तो जब हम यहाँ वहां पे उतरे तो बहुत सारे ग्रुप्स में लोग खड़े थे रेलिंग के पास। तो मेरी कजन ने मुझे एक्सप्लेन करा कि दिस इज लेबर चौक। these were the daily wage workers who work as helpers to masons. They dig at कंस्ट्रक्शन साइट्स, लिफ्ट लोड्स और अनलोड ट्रक्स इन द मार्केट। तो ये क्या है, ये लेबर चौक है जहाँ पे हम लेबर को हायर कर सकते हैं पूरा स्पेसिफिक वर्क के लिए। We entered a factory area to find it full of small workshops. हम फैक्ट्री एरिया में एंटर करो, हमने देखा बहुत सारी स्मॉल वर्कशॉप्स हैं। They seem to be endless row, और बहुत endless row दिख रही थी, एकदम बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। In one section we saw people working in a small room on sewing machines where clothes was being stitched. One person operated one sewing machine. Clothes that had been switched were stacked on one side of the room. तो वहां पे लोग काम कर रहे थे स्विंग मशीन से, और जैसे वो कपड़े बना रहे थे और जब कपड़े स्टिच हो जा रहे थे तो वो एक साइड में उसको रख दे रहे थे। We located Nirmala in the stitching unit. She was happy to meet my cousin and pushed to get zari work done on my dress. और जब निर्मला को जब हमने देखा, वो बहुत खुश हुई मेरे कजन से मिलके और प्रॉमिस करा कि वो जरी वर्क कर देगी। निर्मला वर्क्स एज अ टेलर इन द एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट। द फैक्ट्री वेयर शी वर्क्स मेक समर क्लोथ्स फॉर पीपल इन द फॉरेन कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, जर्मनी एंड द नेदरलैंड। तो जिस उसमें वो काम करती थी, जिस फैक्ट्री में, वो फैक्ट्री समर क्लोथ्स बनाती थी फॉरेन में ले जाने के लिए, लाइक कोई यूएसए, यूके, जर्मनी, नेदरलैंड में वो जाते थे समर क्लोथ्स। वर्कर्स लाइक निर्मला हैड टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स इन द मंथ फ्रॉम दिसंबर टू अप्रैल। उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था दिसंबर और अप्रैल के बीच में। क्यों? क्योंकि समर सीजन अप्रैल के बाद आएगा और वहां पे फिर सेल होगी, तो वो ठंड सर्दियों में बहुत ज्यादा वो काम उनके ऊपर वर्कलोड होता था, ताकि उनका जो मटेरियल है वो मार्च अप्रैल मई तक तैयार हो जाए और वो एक्सपोर्ट हो जाए। A normal working day begins at 6-9 a.m. and finally finishes only at 10 p.m. तो बहुत 13 आवर्स का वर्क आवर्स था उनका, और समटाइम्स इवन लेटर, और कुछ दिन तो कभी देर भी हो जाती थी और वो
शी वर्क्स फॉर 6 days इन अ वीक, और 6 घंटे वो काम, 6 days अ वीक, 6 दिन काम करते थे, संडे का ब्रेक होता होगा. एट टाइम्स व्हेन द वर्क नीड्स टू बी डन अर्जेंटली शी वर्क्स ऑन संडेज टू, और कभी कभी जब अर्जेंट वर्क होता है तो संडे को भी काम करना पड़ता है. निर्मला is paid rupees 280 a day for 8 hours and rupees 100 extra for working late. तो 8 hours का उनको कितना मिलता है, निर्मला को 280 रुपीज मिलता है, 100 रुपीज फॉर वर्किंग लेट. बाय जून द वर्क इज ओवर एंड द फैक्ट्री रिड्यूसेस इट्स स्टाफ, और जून तक आते हैं उनका वर्क क्या होता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो वो निकाल देते हैं वर्कर्स को, स्टाफ को अपने निकाल देते हैं. निर्मला विल बी आस्क्ड टू लीव, निर्मला को भी वो निकाल देंगे. फॉर अबाउट 3 to 4 months इन द ईयर देयर इज नो वर्क फॉर हर, और हर साल 3 से 4 महीनों के लिए उसके पास कोई काम नहीं रहता है. फिर वो नवंबर दिसंबर में फिर उसको हायर कर लेंगे और फिर जून तक करवाएंगे और फिर बीच में काम नहीं होगा उसके पास. Most workers like Nirmala are employed on what is called casual basis. That is, they are required to come as and when the employer needs them. तो क्या कहते हैं इसको, ऐसे बहुत सारे वर्कर्स निर्मला की तरह ही कैजुअल बेसिस पे काम करते हैं. मीन्स जब उनकी जरूरत होती है, व्हेन दे आर रिक्वायर्ड, जब उनके पास फैक्ट्रीज के पास वर्कलोड ज्यादा होता है तो वो उनको हायर कर देते हैं और वरना फिर निकाल देते हैं. दे आर एम्प्लॉयड व्हेन द एम्प्लॉयर गेट्स लार्ज ऑर्डर्स और ड्यूरिंग सर्टेन सीजन. जैसे उनको बड़ा ऑर्डर मिला तो वो एम्प्लॉय, तो वो उनको काम दे देंगे, या फिर उनका जो सर्टेन सीजन्स में काम दे देंगे. एट अदर टाइम्स ऑफ द ईयर दे हैड टू फाइंड सम अदर वर्क, और दूसरे टाइम पीरियड पे जब उनके पास नहीं होती है जॉब तो उनको कोई और काम ढूंढना पड़ता है. Jobs like Nirmala's are not permanent. If workers complain about their pay or working conditions, that they are asked to leave. ना निर्मला का जॉब जो है वो परमानेंट नहीं है, क्योंकि उसको कैसे टेम्पररी बेसिस पे, कैजुअल बेसिस पे रखा जा रहा है, तो इट इज नॉट परमानेंट, टेम्पररी है. और अगर वर्कर्स अपने लेबर कंडीशंस के बारे में कुछ कहते हैं, या फिर कि पे कम है या फिर कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो उनको निकाल दिया जाता है. देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन इफ इस इल ट्रीटमेंट, अगर वहां पे इल ट्रीटमेंट हो रहा है तो कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है. They are also expected to work very long hours. For example, in the cloth mill units, the workers work on day and night shifts with every shift lasting 12 hours. कि 12 घंटे तक काम करते हैं वहां पे. Every worker works on one machine for 12 hours and then is replaced by another for on the same machine for next 12 hours. Now in office area, my aunt Sudha works at a marketing manager. She had asked us to reach her office before 5:30 p.m. जो मेरी आंट है सुधा, वो एक मार्केटिंग मैनेजर हैं. She thought we would get late, so we thought we would get late, so we took an auto rickshaw that managed to get us there just in time. Her office was in the area surrounded by tall buildings. There were hundreds of people coming out. Some headed for the car park, while some went towards the row of buses. तो जब हम पहुंचे ऑटो रिक्शा में, वहां पे हमने बहुत सारे लोग निकल रहे थे, क्योंकि वो उस समय उनका मीन्स उनका जो ऑफिस आवर्स है वो खत्म हुआ था, तो बहुत सारे लोग बाहर आ रहे थे वहां से, और कुछ पार्किंग की तरफ जा रहे थे और कुछ बस की लाइन में लग रहे थे. माई आंट इज अ मार्केटिंग मैनेजर इन द कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स बिस्किट. द फैक्ट्री वेयर द बिस्किट्स आर मेड इज आउटसाइड द सिटी. शी सुपरवाइजेस द वर्क ऑफ 50 सेल्स पर्सन हु ट्रेवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी. और वो मार्केटिंग मैनेजर है, और वो 50 सेल्स पर्सन की वो देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ गए. दे गेट ऑर्डर्स फ्रॉम शॉपकीपर्स एंड कलेक्ट पेमेंट्स फ्रॉम देम. वो ऑर्डर्स लेते हैं शॉपकीपर से और फिर पेमेंट कलेक्ट करते हैं. शी हैज डिवाइडेड द सिटी इनटू 6 रीजन्स एंड वंस अ वीक शी मीट्स द सेल्स पर्सन ऑफ ईच रीजन के. वो सेल्स पर्सन को मीट करते हैं और पूछते हैं कि मीन्स कितना ऑर्डर या फिर कितनी पेमेंट. शी चेक्स देयर प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड डिस्कसेस प्रॉब्लम्स दे फेस. She has to plan the sales in the entire city and often have to work late and travel to different places. She gets a regular salary every month and is a permanent worker with the company. अब उनको रेगुलर सैलरी आती है, परमानेंट वर्कर हैं वो अपनी कंपनी में. मीन्स परमानेंट मीन्स उनको निकाला नहीं जाता.
She can expect her job to continue for a long period of time. Being a permanent worker, she also gets other benefits such as savings for old age. A part of her salary is kept in the fund which with the government. She will earn interest on these savings, and when she retires from the job, she will get this money and she can then live on that. तो क्या है, परमानेंट वर्कर्स होने के फायदे क्या है कि उनको कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे सेविंग्स फॉर ओल्ड एज, कि कुछ पार्ट उस इनकी सैलरी का एक अलग से गवर्नमेंट के पास रख दिया जाएगा और उसपे इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, और जब वो रिटायर होंगे तो वो मनी उनको वापस से मिल जाएगा। हॉलीडेज मिलती हैं, शी गेट्स ऑफ ऑन संडे एंड नेशनल हॉलीडे, शी आल्सो गेट्स सम डेज एज एनुअल लीव, वो लीव ले सकती है कुछ दिन के लिए, संडेज को नेशनल हॉलीडेज को होती है। मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं फैमिली को, कि अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो कंपनी पे करेगी, कुछ अमाउंट कंपनी पे करेगी उस उनके लिए और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए, और उनको मेडिकल लीव मिल जाएगी, सैलरी कट नहीं होगी इस बीच। There are many workers in the city who work in offices, factories, and government departments where they are employed as regular and permanent workers. They attend the same office or factory regularly. Their work is clearly identified. They get a regular salary. Unlike casual workers, they will not be asked to leave if the factory does not have much work. अब वही चीज, जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं, जो टेम्पररी बेसिस पे उनको कह दिया जाता है अगर काम नहीं होता कि तुम, मीन्स उनको निकाल दिया जाता है, बट परमानेंट वर्कर्स के साथ ऐसा नहीं होता, वो एम्प्लॉयड होते हैं चाहे काम हो या ना। At the end of the day, we got into the aunt's car exhausted, but it had been so much fun, and I thought how interesting that so many people do so many different things in the city. They have probably never met each other, but it is their work that ties them together and makes the and helps to make up city life. So that's it with the chapter. If it any doubt regarding this chapter, do comment below, and please like this video, share it with your friends, and subscribe the channel. Thank you.